हेलो क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एज यू लाइक इट, जो शेक्सपियर की एक बहुत मज़ेदार रोमांटिक कॉमेडी है। और मैंने कोशिश की है कि मैं विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स, इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन मैं आपको इस स्टोरी को बहुत साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट, सम की फैक्ट्स ऑफ द प्ले। The play, written in 1599, and type of the play, romantic and pastoral comedy. Setting of the play, opening in Lecce, which falls in France, but the whole play is set in Forest of Arden. Source of the play, थॉमस लॉज रोसलिंड, एक शॉर्ट नॉवल है थॉमस लॉज का, तो विलियम शेक्सपियर ने ये वहां से अडेप्ट किया। थीम्स, लव इन इट्स मैनी फॉर्म्स, रोमांटिक, लॉयल, कॉमिक एंड पुलिश। नेचर वर्सेस कोर्ट लाइफ, ये भी इसकी एक थीम है। डिसगाइज, आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इसकी एक थीम है। फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, ये भी इसकी एक थीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। Symbols in the play, Forest of Arden, which symbolizes natural simplicity and freedom and an escape from the corruption of court life. In Arden, people can reinvent themselves. Rosalind becomes Ganymede and Orlando learns love and Duke Senior finds peace. So, Forest of Arden is a symbol of freedom, natural simplicity, and escape from the corruption of court life. The deer, the wounded deer, symbolizes human suffering in this natural world. Jane and Duke Frederick Scott symbolizes corruption and restriction and tyranny. Contrast with the Forest of Arden's freedom. Love tokens, Rosalind Chan poems on trees symbolizes physical signs of love and devotion. Orlando's poems carved into trees symbolizes love's intensity but also its foolishness. So, जब ओरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के ट्रीज पर अपनी पोयम को वो लिख रहा होता है, लेकिन ये सब सिंबलाइज करती हैं लव की इंटेंसिटी को, बट आल्सो इट्स फुलिशनेस। Motifs in the play, motifs, it means the incidents, some scenes which are presented in the play recurrently, जो बार बार जो है ये प्ले में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको बोलते हैं motifs. So motifs in the play, disguises and gender role, pastoral life versus court life, love in many forms. Courtly love is represented between Orlando and Rosalind. Foolish love, which is represented between Touchstone and Audrey. Melancholic love, which is represented through Sylvius and Phabe. Mocking love, which is represented through Jack's commentary. Shakespeare uses different pairs to show different variety of love. Role playing and performance. Characters often act. Rosalind acts as Ganymede as a male character. Orlando carving poems and Touchstone mocking courtly manners. Life itself is presented as kind of stage anticipating Shakespeare's all the world stage is a merely a stage. Whole the world is merely a stage. So let's move on the characters of the play. So the play opens with the Duke Senior's deprivation of his kingdom. जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो ड्यूक सीनियर से स्टार्ट होता है, जब उसका राजपाट उसके ही छोटे भाई ड्यूक ये फ्रेडरिक के द्वारा उसको छीना जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक की एक ये बेटी है, उसका नाम है सीलिया, और सीलिया अपनी कजन सिस्टर रॉसलिन से बहुत प्रेम करती है, और रॉसलिन ये बेटी है ड्यूक सीनियर की। सो जो रॉसलिन है वो ड्यूक सीनियर की वो बेटी है, और वो इस समय अपने अंकल के
वो कैसल में यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के कैसल में वो रह रही है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई को तो जो है वो अपने किंगडम से निकाल दिया था, लेकिन क्योंकि सीलिया एंड रॉसलिन वर सोलमेट्स, ऑल्दो they are cousin sister but they are like soulmates and they could not separate with each other, लेकिन वो एक दूसरे से बिछड़ नहीं सके because they love each other very much. And here is a subplot also. Orlando who loves Rosalind, Orlando who loves Rosalind, and Orlando's brother Oliver who is just like a monster and he wants to kill his brother Orlando by his mean tricks, because जो ओलिवर है वो अपने भाई ऑरलैंडो को अच्छी ना तो वो अच्छी शिक्षा दे रहा है और वो उसको उसकी अच्छी कि ये जो है कि शिक्षा के लिए भी और वो उसको अच्छी सुख सुविधाएं भी नहीं दे रहा है। जो ओलिवर है वो ऑरलैंडो को एक नौकर की तरह अपने वो घर में रख रहा है, हालांकि कि ऑरलैंडो के फादर ने जब वो ये मरे थे तो ओलिवर ने अपने फादर से ये वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखूंगा, लेकिन उनके मरने के बाद ओलिवर और जो ये ओलिवर है वो ऑरलैंडो से अकारण ही नफरत करने लगता। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्लॉट ऑफ द प्ले। सो मैंने अभी आपको ये बताई कि ड्यूक सीनियर जो इस किंगडम का असली शासक है, उसके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने उसको धोखे से ये गद्दी से हटाकर और अपने आप को उस गद्दी पर ये बिठा लिया है। तो ये जो है कि इस प्ले की स्टार्टिंग में ड्यूक सीनियर को एग्जाइल में दिखाया जाता है, जो अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ मिलकर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने वनवास को काट रहा है वह, लेकिन इस प्रकृति के वो बीच में अपने आप को बहुत पीसफुल महसूस करता है, क्योंकि वो कोर्ट लाइफ में जो ये करप्शन है वो वहां से दूर है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सर रोलैंड डी बॉयज की मौत के बाद उसकी संपत्ति का जो ये बंटवारा है वो दो भाइयों के बीच में हो जाता है। एक का नाम ओरलैंडो है और एक का नाम ओलिवर है, लेकिन लेकिन जो ये लेकिन जो ये ओलिवर है वो अपने भाई को अकारण ही खामखाई ही उससे नफरत करता है और वो उसको हमेशा एक नौकर की तरह उसको वो ट्रीट करता है। तो जब इस प्ले तो ये जब इस सीन की स्टार्टिंग होती है तो जो ओरलैंडो है वो अपने सीनियर एक नौकर यानी कि वो एडम से बात कर रहा होता है कि देखो मेरा जो भाई है वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, ना मुझे वो अच्छी शिक्षा देता है, ना मुझे वो अच्छा कुछ खाने के लिए वो देता है, यहाँ तक कि वो मुझे नौकर की तरह है वो रखता है। इतने में जो ओरलैंडो का जो भाई है वो ये सब बात वो सुन लेता है और दोनों के बीच काफी अच्छी खासी हॉट टॉक हो जाती है। आपस में वो जो है वो लड़ने वो लगते हैं, क्योंकि अब ओरलैंडो का नेक्स्ट डे एक मैच होने वाला है। तो जो ओरलैंडो का जो भाई होता है ओलिवर, वो उसके अपोनेंट जो एक रेसलर है चार्ल्स, उसको वो उसके साथ वो मिलकर ओरलैंडो की मौत की एक षड्यंत्र वो जो है तो वो रचता है और वो चार्ल्स से कहता है कि तुम्हें ओरलैंडो को इतना मारना है ताकि वो ऊपर पहुंच जाए। लेकिन उल्टा हो जाता है, जब ओरलैंडो चार्ल्स से वो लड़ता है तो ओरलैंडो चार्ल्स को बहुत ही पूरी तरीके से उसको वो मार देता है, पीट देता है और ओरलैंडो उस मैच में उस रेसलिंग मैच में जीत जाता है। इसी मैच में क्योंकि जो ये मैच हो रहा था वो सर रोलैंड तो क्योंकि जो ये मैच हो रहा था वो ड्यूक फ्रेडरिक के ही दरबार में हो रहा था, तो इसी ड्यूक फ्रेडरिक के इसी जो है कि दरबार में ड्यूक फ्रेडरिक की जो ये भतीजी है यानी कि जो ड्यूक सीनियर की जो ये लड़की है रॉसलिन, वो भी वहां पे उस मैच को देख रही होती है और वो
ऑरलैंडो की बहादुरी से इतना खुश हो जाती है कि वो अपना वो ये दिल ऑरलैंडो को पहले ही नज़र में दे बैठती है और वो अपने गले की चैन उतारकर ऑरलैंडो को एज़ ए टोकन ऑफ लव दे देती है। एज़ ए टोकन ऑफ लव वो दे देती है। अब ऑरलैंडो को रोसलिन से प्यार हो जाता है और रोसलिन को ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है क्योंकि वो उस मैच में ऑरलैंडो की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाता है। उसी रात ड्यूक फ्रेडरिक रोसलिन से नाराज होकर उसे वो दरबार से वो निकालने का यानी कि अपने वो जो है कि महल से वो निकालने का फैसला वो करता है। लेकिन जो सीलिया है वो इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और और जो ये सीलिया है वो ड्यूक फ्रेडरिक की ही वो बेटी है। लेकिन जो सीलिया है वो रोसलिन को छोड़ने से इनकार कर देती है और वो उसके साथ ही रात को वहां से वो भागने का वो निर्णय वो करती है। रोसलिन अपनी वो सुरक्षा के लिए एक लड़के का भेष बना लेती है और अपना नाम वो गैनीमेड रख लेती है और जो सीलिया होती है वो एक बहुत गरीब लड़की का भेष बना लेती है और उनके साथ उनका एक जो एक ये क्लाउन है उसका नाम होता है टच स्टोन, वो भी उनके साथ रात को ही उनकी वो सुरक्षा के लिए वहां से वो चल देता है और वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर निकल जाते हैं। इधर जब ड्यूक फ्रेडरिक को ये बात पता लगती है कि मेरी जो बेटी है और मेरी जो ये भतीजी है वो मेरे महल से वो गायब हो गई है, तो वो ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर को बुलाता है और ये कहता है कि इन सब के बीच में तुम्हारा जो भाई है ओलिवर इनका हाथ है, क्योंकि मैं वो मैच को देखकर ही मैं सब समझ गया था कि मेरी जो वो भतीजी है वो तुम्हारे भाई से प्यार करने लगी है और मुझे ये शक है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो भाई है ऑरलैंडो वही मेरी वो बेटी और वो मेरी भतीजी को यहाँ से भगाकर कहीं वो लेना गया हो, कि मैं तुम्हें आदेश ये देता हूँ कि तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर मेरी बेटी को और मेरी इस भतीजी को और तुम्हारे भाई को कहीं से भी तुम ढूंढ कर लाओ, चाहे तुम ओलिवर को तुम किस जिंदा लाओ चाहे तुम उसको ये मरा हुआ लाओ। अब ये बात जो है ऑरलैंडो का जो वो एल्डर एक नौकर होता है एडम, जब ये बात को वो सुनता है तो वो ये बात एडम को बताता है और उसी रात एडम और ऑरलैंडो भी महल को छोड़ देते हैं और वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर निकल पड़ते हैं। और वो जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर निकल पड़ते हैं तो वहां पे वो ड्यूक सीनियर को उनके फॉलोअर्स के साथ प्रकृति के बीच में स्वतंत्र एक फ्रीडम भरा जीवन वो जी रहे होते हैं। वहां पे उनको एक कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम होता है ये जैक्स। वो एक जख्मी हिरन के पास बैठा होता है और एक बहुत फेमस वो डायलॉग बोल रहा होता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। लेकिन वो जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाते हैं तो तो जो ऑरलैंडो का जो वो एल्डर नौकर होता है वो बहुत थका हुआ होता है बहुत, क्योंकि वो बेचारा बहुत एक जो है वो एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है और वो बहुत भूख से और ये प्यास से मर रहा होता है। तो वो जब ड्यूक सीनियर के वो पास जाता है और वो अपनी वो जो है कि तलवार को वो निकालता है और वो ड्यूक सीनियर से खाना और पानी मांगता है अपने एल्डर नौकर एडम के लिए, लेकिन ड्यूक सीनियर युद्ध के लिए वो जो है कि मना कर देते हैं और वो उनको और वो एडम को और ऑरलैंडो को बहुत प्यार से अपने साथ खाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। इतने में जब जंगल के एक हिस्से में जब रोसलिंड और सीलिया अपना भेष बदलकर जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच गए होते हैं तो रोसलिन जो एक इस समय एक जो है ये गैनीमेड का भेष धारण कर कर वो घूम रही होती है, तो वहां पे जो पेड़ होते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो ये देखते हैं कि उन पेड़ों के ऊपर ऑरलैंडो ने अपनी लव पोएट्री को लिख लिख कर
टांगा हुआ था। अब इस बात को देखकर रोसलिन पहचान लेती है कि ये जो लव पोयम है वो ऑरलैंडो ने ही मेरे लिए लिखी है। तो वो ये समझ जाती है कि इस जंगल में कहीं न कहीं ऑरलैंडो भी है। तो जब जंगल में रोसलिन को याद कर कर के पेड़ों पर प्रेम कविताएँ लिख रहा होता है, तो रोसलिन गैनीमेड के वो जब वो भेष में उससे वो मिलती है, तो वो कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मुझको ही रोसलिन तुम समझो, क्योंकि इस समय जो रोसलिन है वो गैनीमेड के ही वो की भेष में है। तो वो उससे वो कहती है कि तुम मुझे ही रोसलिन तुम ये जो है कि ये समझो और तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। इस भेष के ज़रिए रोसलिन ऑरलैंडो से प्रेम की परीक्षा वो लेती है और इस नाटक के ज़रिए वो ऑरलैंडो का जो ये प्रेम है, अपने लिए वो उसको परखने की कोशिश करती है और इसी नाटक में धीरे-धीरे रोसलिन को ऑरलैंडो से अत्यंत प्रेम हो जाता है। इतने में ओलिवर जो है वो ऑरलैंडो की तलाश में वो जंगल में आ जाता है। ऑरलैंडो अपनी जान की परवाह किए बिना ओलिवर को एक शेरनी से और एक सांप से वो बचाता है। इस घटना से ओलिवर का जो हृदय है वो सब परिवर्तन हो जाता है और वो ऑरलैंडो से प्रेम करने। जब ओलिवर की मुलाकात सीलिया से होती है तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो और जब ओलिवर रोसलिन को ऑरलैंडो का एक रुमाल दिखाता है और वो रोसलिन से मजाक में ये कहता है कि जब मेरा भाई मुझे एक शेरनी से और सांप से बचा रहा था तो वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया और वो बेहोश हो गया और कि देखो जो ये है रुमाल है इस रुमाल में ऑरलैंडो का ही खून लगा हुआ है। तो ये इस रुमाल को देखकर जो रोसलिन होती है वो बेहोश हो जाती है और यहाँ से फिर हम ये देखते हैं कि रोसलिन का जो हृदय है वो वाक़ई में जो यानी कि रोसलिन का जो ये दिल है वो वाक़ई में ऑरलैंडो के लिए ज़ोर से धड़कने लगता है। हम इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एक प्रेम कहानी और देखते हैं जो सिल्वियस और फैब की होती है। क्योंकि जो ये सिल्वियस है वो एक शेफर्ड है और वो बार-बार फैब से अपने प्रेम का इज़हार करती है, लेकिन जो फैब है उसके प्रेम को बार-बार ठुकरा देती है क्योंकि जो फैब है, जो ये शेफर्डेस है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो ये फैब है वो सिल्वियस का प्रेम इसलिए ठुकरा देती है क्योंकि वो गैनीमेड से प्यार करने लगी है और ये गैनीमेड कौन है? जो वास्तव में रोसलिन है। अब रोसलिन कैसे जो है ये जो है ये तो जो है ये कैसे वो इस फैबे से प्यार करे क्योंकि वो खुद एक ये लड़की है। तो इस तरीके से इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एक लव ट्रायंगल बन जाता है क्योंकि जो सिल्वियस है वो फैब से प्यार करती है। सॉरी जो ये सिल्वियस है वो फैब से प्यार करता है और जो फैब है वो गैनीमेड से प्यार करती है और जो ये गैनीमेड है यानी कि जो रोसलिन है वो ऑरलैंडो से प्यार करती है। तो यहाँ पे भी एक लव ट्रायंगल ये बन जाता है। अब यहाँ पे एक लव स्टोरी और होती है यानी कि एक लव ट्रायंगल और होता है जो ये टचस्टोन होता है जो सीलिया और रोसलिन के साथ इस जंगल में आया था, वो भी उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की एक लड़की से प्रेम करने वो लगता है। उस लड़की का नाम होता है ऑड्री। लेकिन इसी बीच जो ये जैक्स है वो भी ऑड्री से वो ऑड्री को समझाता है कि देखो ये तुम्हारा ये जो है कि इससे ये प्यार करना सही नहीं है। इतने में जब एक दिन ओलिवर और ऑरलैंडो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई देखो, जब ओलिवर जो है वो ऑरलैंडो को ये बता रहा होता है कि देखो मुझे अलीना से प्यार हो गया जो वास्तव में सीलिया है और अब मैं उसे अपने प्रेम का इज़हार कैसे करूँ? अब ऑरलैंडो भी रोसलिन के प्यार में वो पागल है। तो ये जब दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो अपने प्रेम का इज़हार कैसे करें, तो इतने में वो शादी कैसे करें, तो इतने में वहाँ पे रोसलिन यानी कि जो ये है जो है वो गैनीमेड के वो भेष में आती है और वो ये कहती है कि देखो कल तुम इसी वक़्त, इसी स्थान पे जो है कि तुम मिलना और मैं तुम सबका
जो है मैं शादी मैं ये करवा दूँगी। तो अगले दिन जब रॉसलिन अपना और जो है वो अपनी जो है कि बहन के वो भेष में आती है, ड्यूक सीनियर के वो जो है कि वो दरबार में, तो वो अपना जो है वो जब वो भेष को वो उतारती है, तो ये एक सच उजागर हो जाता है कि जो ये गैनीमेड है वो वास्तव में रोसलिन है और वो ऑरलैंडो से शादी के लिए कसम खिलाती है और वो इस बात के लिए जो ड्यूक सीनियर है उससे परमिशन वो लेती है। अब जो ये फैब है जो गैनीमेड से जो प्रेम करती थी, अब उसका भी जो है वो प्रेम फेड हो जाता है, क्योंकि वो कोई ये लड़की नहीं, वो क्यों सॉरी क्योंकि वो लड़की नहीं, वो तो एक ये लड़का है और वो फिर किसी और इसके बाद से वो फिर वो जो है कि सिल्वियस से प्रेम करने वो लगता है और ओलिवर भी सीलिया के सामने अपने प्रेम का इजहार करता है और जो टच स्टोन था जो सीलिया और रॉसलिन का जो ये क्लाउन था वो भी ऑड्री के सामने शादी का प्रस्ताव वो रखता है। तो इस प्रकार से उस दिन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में 4 जोड़ों की शादी हो जाती है, ऑरलैंडो रोसलिन की और ओलिवर और सिलिया की और ये सिल्वियस और ये फैब की और ये टचस्टोन और ऑड्री की। और इस प्रकार से ये जो नाटक है वो इन 4 शादियों में खत्म हो जाता है और जो ड्यूक सीनियर है वो अपने भाई यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक को माफ कर देता है और इस प्रकार से यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डायलॉग की। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये जो ये जो एक है डायलॉग है वो ड्यूक सीनियर ये बोलता है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इट मीन्स अगर हमारे सामने कोई आपत्ति कोई ये विपदा आती है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। सेकंड डायलॉग, द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। ये बोलता है टचस्टोन कि फूल अपने आप को वाइज समझता है और जो वाइज है वो अपने आप को फूल समझता है। लव इज मेयरली ए मैडनेस। ये बोलती है रॉसलिन। रॉसलिन इन disguise of Ganymede mocks love of Orlando, and she makes fun of Orlando's love towards Rosalind. Men have died from time to time, and bombs have eaten them, but not for love. ये जो डायलॉग है वो रॉसलिन बोलती है, वो कहती है वो जो है कि प्रेम के ऊपर एक ये तंज कस रही है कि प्यार के लिए मरना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जो ये रोसलिन है वो प्रेम को जो इतना सब लोग की जो है सब बढ़ा चढ़ाकर जो पेश करते हैं वो इस बात की वो निंदा कर रही है। वेडिंग इज ग्रेट जूनोस क्राउन। ये जो एक डायलॉग है वो हाइमन बोलता है। मैरिज इज रिप्रेजेंटेड एज ए डिवाइन ब्लेसिंग एंड सोर्स ऑफ सोशल हार्मनी। ट्रूली आई वुड द गॉड्स हैड मेड दी पोलिटिकल। इस लाइन में जो रॉसलिन है वो ओरलैंडो की कविता का मजाक को बना रही है। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये एक गाना है जो ये गाना ओरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रॉसलिन की याद में वो लिखता है। इफ लेडीज बी बट यंग एंड फेयर दे हैव द गिफ्ट टू नो। ये बोल रही है रॉसलिन, वो ये कह रही है कि जो ये महिलाएं हैं जो ये लड़कियां हैं इनके पास एक ये गिफ्ट होता है और वो गिफ्ट ये होता है कि वो हर इंसान की जो एक फितरत है वो क्या सोच रहे हैं वो सब जान लेती है। उसके पास एक सिक्स सेंस होता है। ए फूल मेट ए फूल द फॉरेस्ट। ये जो सेंटेंस है वो जैक्स बोलता है जो उस फूल से बहुत फैसिनेट हो जाता है। नाइदर राइम नॉर रीजन कैन एक्सप्रेस हाउ मच। ये जो लाइन है वो ओरलैंडो बोलता है कि इस दुनिया में कोई बात साबित नहीं कर सकता है कि मैं रोसलिन से कितना जो है ये प्रेम करता हूँ। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। ये जो बहुत फेमस डायलॉग है वो जैक्स बोलता है कि इस संसार में हर इंसान ईश्वर की एक कठपुतली है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which critical theme is most closely associated with Jack's all the world is a stage
As You Like It, the Forest of Arden primarily symbolizes a pastoral retreat of simplicity and natural truth. Which character in As You Like It provides a satire of Petrarchan love convention? Rosalind in guise of गैनीमेड, वो जब गैनीमेड का भेष धारण करती है तो वो ऑर्लैंडो की पोइट्री का मजाक बनाती है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी बेस्ट रिप्रेजेंट विनेसा आइडिया। Christian stoicism, which of the following is not a marriage at the end as you like it? Jax and Audrey. How does such a stone function in the play? A wise fool exposes the truth through wit. In terms of genre, As You Like It is the best classified as romantic comedy. Which character is most described as melancholic and in critical discussion? Jax. The play's resolution with multiple marriages and reconciliation reflects the comic principle of harmony and social restoration. Low Blow the Winterwind as a song emphasizes which thematic idea? Human ingratitude is harsher than nature. The epilogue of As You Like It is significant. कि As You Like It का जो लास्ट का जो ये डायलॉग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रॉसलिन इस एपिलॉग में ये बोलती है और वो अपनी ऑडियंस से डायरेक्टली वो बात करती है, इसलिए इस ड्रामा का जो एपिलॉग है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो and we shall meet in our next video. As for now, bye bye and signing off, and please tell me in comment section how did you find the video. Bye bye.